स्ट्रेट आंसर से शुरू करूँगी. इट्स लाइक कि डिग्री इज़ नॉट नेसेसरी बट ऑफ कोर्स इट हेल्प. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ, वेरियस टाइम आपको रिक्रूटर्स की कॉल आएगी एंड दे आस्क फॉर योर डिग्री. ओके, एंड दे डोंट इवन कंसिडर you have the skills or not. So degree of course help, but we have great example of the programmers, developers जिन्होंने खुद से learn करा है through online courses and उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी job भी ली है. So for that I would consider कि अगर डिग्री नहीं है कोई बात नहीं है, start learning by yourself. सो हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज़ अभिजीत एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है एंड उनका नाम है निशा एंड उनका भी एक यूट्यूब चैनल है कोडिंग निशा एंड वो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे लाइफ में. सो उनकी हम जर्नी जानेंगे एंड इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि कैसे एक नॉन टेक स्टूडेंट टेक में आ सकता है, क्योंकि उनका जो कह सकते हो काइंड ऑफ जो भी बैकग्राउंड था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर भी होंगे. सो आई थॉट वाई शुडंट आई उनको कॉल करते हैं अपने चैनल पे, सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट. So hi Nisha. So first of all, can you please introduce yourself? Yeah, hi Abhijit. First of all, thank you for introducing me to your audience and for setting up this meeting. Okay, so hi guys. If you are not aware, so my name is Nisha and I'm someone who has switched her career from commerce to tech, and now I'm a software engineer and a content creator. Maybe you already knew by my handle name, that is Coding Nisha. I have my Instagram with that name and other handles also. So basically our motto is today to connect and help you guide through my journey. So by the way, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दैट कोडिंग निशा के इंस्टाग्राम हैंडल पे 100K प्लस हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू. Yeah, thank you. सो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इस पॉडकास्ट को रखने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे एंड फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे एंड ताकि आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो पाए. जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है निशा, दैट हाउ नॉन कोडिंग जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग का, जैसे जो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो बीए करा हुआ है या बीकॉम किया है या कोई ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे उसको कोई भी नॉलेज नहीं है कोडिंग की. सो हाउ कैन ही गेट स्टार्टेड इनटू कोडिंग एंड वो कैसे कोडिंग में आ सकता है? सो कैन यू प्लीज शेयर दैट, बिकॉज यू हैव अ वेरी, यू कैन से, ग्रेट बैकग्राउंड. सो प्लीज. Okay, so starting with if you are from a non-tech background, how you can get into coding. So there are various ways you can self-taught, or even you can go to a boot camp, and now we have a lot of resources. At that time I started, I don't have that much great mentorship, so I had the hard time, but you can do in a very easy way. There are few steps which you need to follow. First, you need to identify the programming language which you really want to learn. So there are many popular programming language जिसमें से आप choose कर सकते हो. We have Python, we have JavaScript, C++, Java and lot more. So firstly you need to figure out what is your end goal and what you want to achieve. So considering me, so I decided to go into web development, and that's why I started with JavaScript. I learned the fundamentals of web development, that is HTML, CSS and JavaScript. So all you need to do is figure out what you want to do and what you want to achieve in your career, and then you can start learning with one programming language. Then you can find the resources where you can learn. We have various resources which are free. Even you can start with the books, you can start with tutorials, and you can join any boot camp. It's totally up to you, what is your pace and how you want to go and how fast you want to achieve the results. Okay, then we have, it's start learning and practicing. So when we start learning, so we started with the basics, and once you covered the basics, start focusing on practicing. Let's say build some project with the learning and the concept which you have learned. Build a project, a real world project, and work on the portfolio, and join a community. And one more tip which I want to add in this is by learn online, learn by sharing online, build your presence online, because as we are from different background and we have a lot of competition, and it's very hard to make transition competing with other technical students, or you can say B.Tech student and the students who come from this tech background. So in that case what you need to do is start sharing online and usse kya hoga,
कि जो रिक्रूटर है या फिर जो एम्प्लॉयर है वो खुद आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना शुरू कर देगा. सो दैट्स द वे यू कैन स्टार्ट. सो लाइक समरी जैसे निशा ने बताई दैट यू शुड लाइक पिक वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड करती है क्या आप बनना चाहते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको एक बैकएंड डेवलपर बनना है. सो बैकएंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए आप HTML एंड CSS या भी कोई और C++ से आप बैकएंड डेवलपर नहीं बन पाओगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको गेम डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए C++ हो गई. आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी. सो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी एंड उसके बिहाफ पे आप किसी भी पाथ पे जा सकते हो. ओके, वेरी ग्रेट लाइक निशा. एंड ऑल्सो लाइक जैसे कि तुम एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, ठीक है, और लाइक सबको पता है कि लाइक डिग्री तो मैटर करती है भाई. किसी भी कंपनी में आप जाओ, दे फर्स्ट चेक आपके पास कितना डिग्री है एंड देन दे ऑफर यू लाइक ओके ये चीज़ है. तो ये क्या लाइक डिफ़िकल्टी होती भी है या फिर एक ये मिथ है, या अगर है ऐसी किसी के पास, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से है एंड उसको टेक में आना है, तो अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? सो स्ट्रेट आंसर से शुरू करूँगी. इट्स लाइक कि डिग्री इज़ नॉट नेसेसरी बट ऑफ कोर्स इट हेल्प. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ, वेरियस टाइम आपको रिक्रूटर्स की कॉल आएगी एंड दे आस्क फॉर योर डिग्री. ओके, एंड दे डोंट इवन कंसिडर यू हैव द स्किल्स और नॉट. So degree of course help, but we have great example of the programmers, developers जिन्होंने खुद से learn करा है through online courses and उन्होंने काफ़ी अच्छी जॉब भी ली है. So for that I would consider कि अगर डिग्री नहीं है कोई बात नहीं है, start learning by yourself, build online presence, okay, work on your skills, अपनी skills पे काम करो and कुछ ऐसा करो you are outstanding. It's like you have the skills, you have the portfolio, you have the project, and start sharing online and start sharing on LinkedIn. जैसे आप शेयर करना शुरू करोगे, आप देखोगे after few time recruiters and employers आपको directly contact कर रहे होंगे खुद से ही. So of course degree help, but it like not necessary. हाँ, ये बहुत सही चीज़ बोली. लाइक जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हो या आप लिंक्डइन, गिटहब या इन सब पे जाकर के पॉपुलर हो जाते हो, तब आपके पास रिक्रूटर खुद आता है. आपको खुद जॉब की तरफ नहीं जाना पड़ता है, रिक्रूटर आपकी तरफ खुद आता है दैट ओके वी आर लुकिंग फॉर सम पाइथन डेवलपर, वी आर लुकिंग फॉर सम जावास्क्रिप्ट डेवलपर, आर यू पीपल इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. आपके पास खुद लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटी आएगी. एंड ऑल्सो लाइक जब आप कुछ साल, लाइक 2-3 साल जब जॉब कर लोगे या 1 साल भी कर लोगे ना, आपने कुछ ठीक ठाक चीज़ें करके रखी होगी, तो आप देखोगे आपके लिंक्डइन पे खुद ही एक ना एक कोई ना कोई मैसेज करता होगा कि हाय वी आर लुकिंग फॉर सम पाइथन डेवलपर, हाय वी आर लुकिंग फॉर सम जावास्क्रिप्ट डेवलपर, आर यू पीपल इंटरेस्टेड. इस तरीके के काफ़ी मैसेजेस आते हैं. सो स्किल्स मैटर अ लॉट मोर देन डिग्री. ओके, डिग्री, yes. So like Nisha, also like you are a full stack developer. So full stack developer, let's take an example. क्योंकि most of the people जो हैं वो वेब डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा you can say attract होते हैं, because वहाँ पे जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. एंड देन लाइक बहुत थोड़ा ईजी होता है, लाइक बाकी सब चीज़ों से उसके रिसोर्सेज भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, इस वजह से लोग करते हैं. सो व्हाट्स लाइक, अब क्या तुम्हारा कॉल है लगी उस पर फुल स्टैक डेवलपमेंट पे? Okay. So even with web development, it's easy for you to switch into tech. Like as I'm a commerce graduate, okay, I'm a BCom graduate, and let's say if you are from BA or something, so as a web developer, it's easy for you to switch in this career. And let's talk about the roadmap, like what you need to learn as a full stack developer. So starting off with you need to learn the web development fundamentals, which are like HTML, CSS and JavaScript. ये आपको basic technologies है जो आपको learn करनी पड़ेगी. Once you have learned that, so it's like the part of front end. Now you need to learn the server side programming. So उसके लिए हमारे पास various options आते हैं, starting with Python, Java, PHP, Node.js. But as you are coming from like non-tech background and you have already learned the JavaScript, so I usually suggest कि अगर आपने JavaScript कर ली है तो go for Node.js, क्योंकि it's like आपके लिए easy हो जाएगा Node.js करना apart from different languages. So once you have learned the front end side वाली languages, back end का आपका server side programming language हो गया, उसके बाद now you need to learn the database. Okay, for that we have option like MySQL and MongoDB. So ये आप कर लेते हो. उसके बाद important है कि आप एक कोई front end का framework pick करो.
उसके पास भी उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं विच इज़ रिएक्ट एंड वी हैव एंगुलर एंड Vue.js. तो यू कैन पिक अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट और यू कैन पिक कि जो पॉपुलर है. मेनली लॉट ऑफ स्टूडेंट पिक रिएक्ट, मे बी सॉरी, lot of student pick React as it's more popular and इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. मैंने भी उसी से शुरू करा था, बट देन मेरे पास ऐसी जर्नी भी रही है मेरी कि मेरे को कंपनी में जाके एंगुलर भी सीखना पड़ा है. सो वंस यू हैव द स्किल, उसके बाद आप जब दूसरी जॉब में जाते हो तो आपको वहाँ पे टाइम दिया जाता है आपको उस स्किल को सीखने के लिए भी. सो बेसिक जो फंडामेंट्स हैं वो सीख के एंड यू कैन गो फॉर अ जॉब एज अ फुल स्टैक डेवलपर. यू कैन गो फॉर अ मर्न या मेन में जा सकते हो आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर. एंड ऑल्सो न्यूटन स्कूल का एक कोर्स भी है फुल स्टैक डेवलपमेंट में. सो यू पीपल वांट टू इनरोल, उसमें आपको सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें निशा ने बताई हैं, लाइक HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क हो गया, रिएक्ट हो गया, बैक एंड में Node.js सिखाई जाती है एंड MongoDB सिखाई जाती है. पूरा आपको एक मन डेवलपर बनाया जाता है. सो इफ़ यू पीपल वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, सो आप उसके कोर्स में चाहो तो इनरोल कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती है. एंड ऑल्सो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप चेक करके इनरोल कर सकते हो उस कोर्स में. दैट कोर्स इज़ रियली हेल्प यू एंड आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है एंड कई सारे पर्क्स होते हैं, प्लेसमेंट अश्योरेंस होता है न्यूटन स्कूल का. तो वो सारी चीज़ें भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो निशा, लाइक ऑल्सो अभी तक तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, लाइक हाउ अ नॉन टेक स्टूडेंट कैन इनटू टेक में कैसे आ सकता है. देन उसके बाद हमने ये भी सीखा लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी चूज़ करनी चाहिए. हमने ये भी सीखा एक फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनना चाहिए. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ लाइक कैसे रेज्यूमे को बिल्ड करें, क्योंकि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हर एक स्टूडेंट पूरा एक कह सकते हो सैंडविच उसने तैयार करके रखा हुआ है. नाउ द सैंडविच इज़ रेडी एंड वो सैंडविच अब जा करके बस रिक्रूटर को परोसना है. सो उसके लिए क्या चीज़ें टिप्स देना चाहोगे दैट रिज्यूमे में वो ऐड करे ताकि उसके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए, बिकॉज वो एक नॉन टेक स्टूडेंट है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है. सो हाउ ही कैन लाइक गेट द गुड और यू कैन से अपॉर्चुनिटी. सो इस पर लाइक क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है? Okay, so mentioning that if you are from non-tech background, so resume plays a very important role. क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है जो कंपैरेटिवली और स्टूडेंट्स के पास है, जो रिक्रूटर मेनली फोकस करते हैं. फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन हाईलाइट आवर रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. एज वी डोंट हैव द बैकग्राउंड इन टेक, व्हाट वी कैन डू, वी कैन हाईलाइट द स्किल्स लाइक मे बी यू आर फ्रॉम BCom, सो यू कैन हाईलाइट अगर आपके पास डेटा एनालिसिस की स्किल्स हैं और यू हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो आप अपने रिज्यूमे में यू कैन हाईलाइट दैट. क्योंकि you have the skills, of course you have the problem solving skills, you have the data analysis skills. So focus on highlighting the relevant skills. सारी skills add नहीं कर देनी चाहिए है, because we are targeting to get into tech. So उसी से relevant skills लिखनी है हमें. And now नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि अपनी जो लर्निंग है, ग्रोथ है, उस पर एम्फसाइज करें. लाइक व्हाट जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप उस पर एम्फसाइज कर सकते हो कि आप एक नॉन टेक से टेक में जाने के लिए यू आर लर्निंग एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, क्योंकि यू आर डूइंग मच बेटर देन अदर स्टूडेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख रहे हैं, इतने सालों से सीख के आए हैं. बट एज अ नॉन टेक स्टूडेंट्स यू हैव टू कवर एवरीथिंग इन अ ईयर और 2, इवन काफ़ी लोग तो 6 months में भी करके आर गेटिंग गुड जॉब्स. सो इट्स अप टू योर पेस. सो वट यू कैन डू कि यू कैन एम्फसाइज ऑन द लर्निंग एंड द ग्रोथ. कि एज अ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स वी हैव द डिसएडवांटेज कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं है. हाउएवर वी कैन एम्फसाइज ऑन कि हम लर्न कर रहे हैं, वी आर कमिटेड टूवर्ड्स दैट. लेट्स से वी कैन डेमोन्स्ट्रेट कि हमने कोई ऑनलाइन कोर्स करा है, वी कैन मेंशन दैट. अगर हमने कोई ट्यूटोरियल फिनिश करा है हम वो मेंशन कर सकते हैं. मेन हमें जो फोकस करना है वो करना है प्रोजेक्ट्स पे. प्रोजेक्ट्स अच्छे से मेंशन करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितना बेटर आप कर सकते हो, जितने बेस्ट आप प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो वो मेंशन करो उसमें. और अपना इंटरेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करो रिज्यूमे में कि यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग एंड आप सीख रहे हो
you are committed towards that. उसके बाद what we can do कि हम उसमें mention कर सकते हैं our achievements और हमने कुछ अच्छा भी recent में करा हो. Let's say अगर आप किसी challenge में गए हो, वहाँ जो अगर आपने participate करा है या फिर आपने कोई award जीता है, किसी hackathon में गए हो या फिर कोई open source project करा है, तो mention that in your resume कि आपने ये चीज़ें achieve की हैं and उसको demonstrate करो, आप अपनी skills को demonstrate करो. And last one is कि focused बनाओ अपना resume. Your resume should be concise and focused. सब कुछ mention नहीं कर देना है, उसमें clearly mention होना चाहिए कि you are interested in tech, आपके पास ये skills हैं, ये projects आपने बनाए हैं और ये आपका learning कर रहा है और आप टेक में आना चाहते हो, अगर आपको एज अ फ्रेशर जाना है तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं विच यू नीड टू डू एंड द इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए. एंड लाइक एक टिप मैं भी देना चाहूँगा कि रिज्यूमे जो है वो आपका एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए एंड कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं डालना, वरना एट द एंड जब लाइक तुम टेबल पे 1-on-1 बैठोगे ना, एट द एंड कोई ना कोई जान जाएगा कि व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट. सो वो चीज़ कभी मत करना. सो आई होप लाइक पॉडकास्ट समझ में आया होगा. सो आई होप लाइक निशा anything like you want to say to students or like some suggestion, then definitely you can give like right now. Okay. So this is a one-liner which I want to add, and basically it belongs to my career and my journey. It's like कि it's never too late to start. Okay, so if you are someone watching this live, maybe I can motivate even 1 or 2 students that it's never too late. You can even start learning coding now if you want to get into tech, and there are a lot of perks and various factors which you need to consider if you want to get into tech. So it's never too late. Start now. If any skill, any technology, start it. Very well said, Nisha. And first of all, again, like thank you. First of all, कह रहा हूँ again, thank you for coming to our channel and for helping students, क्योंकि बहुत सारे students की query आई थी कि that उन्होंने कोई tech degree नहीं है. So I thought बुलाना चाहिए, definitely तुमसे अच्छा example नहीं हो सकता. सो थैंक्स अ लॉट अगेन. एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली तुम निशा के चैनल पे जा सकते हो, कमेंट पे लाइक कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली वो रिप्लाई करेगी. एंड थैंक्स अ लॉट अगेन. सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बोथ ऑफ ऑल चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड इफ़ यू आर लाइक ऑलरेडी ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो ऑलरेडी चैनल को शेयर कर सकते हो और लोगों तक, ताकि और उनकी हेल्प आउट मिले. सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.